Today we will be discussing about another very interesting and important topic, and that is paradox and fallacies. ना on paradox and fallacies, this is a very important topic क्योंकि जो हमारा कोर्स है fallacies in common reasoning, उसमें ये एक बहुत important factor होता है हम सभी के लिए समझना कि paradox क्या है, fallacies क्या है. तो we will be dealing with paradox in first couple of slides, I guess so. उसके बाद हम fallacies को ही discuss करेंगे. So that you have a very basic and good idea about what basically fallacies are, है ना. लेकिन at the end of the slides or of the class, we will be also coming back to paradox also a little bit, so that you understand why we are taking this as paradox and fallacies. क्योंकि कोर्स तो जो है कॉमन रीजनिंग के fallacies के ऊपर है, बट फिर भी paradoxes are important and paradoxes are very interesting as well from the logical point of view. तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि what are paradox. Now paradox अगर आप देखें तो ये बेसिक डेफिनेशंस आपको जो है इंटरनेट पे बहुत इजीली मिल जाएंगी. कभी आप कोई डिक्शनरी में भी सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, जो कहता है कि किसी भी तरीके की एब्सर्डिटी या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं. अब आपको पता होगा दोज पीपल हु हैव गॉन थ्रू लॉजिक कि कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि पी है और नेगेशन पी है, यानी कि कोई एक स्टेटमेंट है और उसका नेगेशन है, एंड at the same point of the time as well as at the same place both cannot be true together. लेकिन जब पैराडॉक्सेस की डेवलपमेंट होती है, और हम क्योंकि इस कोर्स में कुछ पैराडॉक्सेस भी पढ़ेंगे, जैसे लायर पैराडॉक्स पढ़ेंगे, तो क्या है वो रीजन जिसके कारण से जो है एक ही या कुछ ऑपरेशंस के बाद जो है हमें एक स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ द टाइम लगने लगता है. जैसे आप देख भी सकते हो इसमें डेफिनेशन, अ सीमिंगली एब्सर्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन व्हिच व्हेन इन्वेस्टिगेटेड मे प्रूव टू बी वेल फाउंडेड और ट्रू, है ना. कि आपको बहुत ही एब्सर्ड या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लग रहा है कोई, और उसको जब हम सर्च करते हैं तो देखते हैं कि नहीं सही तो कह रहा है. नो, दिस इज द कंफ्यूजन which comes up. इस तरीके से a statement or proposition which despite sound or apparently sound, देखिए ये बहुत important है, apparently sound reasoning from acceptable premises leads to a conclusion that seem logically unacceptable or self-contradictory. तो हो क्या रहा है, ये मैं ये definitions के थ्रू या paradox को initially जो है आपको introduce इसीलिए कर रहा हूँ, so that you understand that there is some problem either with the statement और with the line of reasoning और with something else, जो कि हम इस कोर्स में देखना चाहेंगे. जैसे आपको पता होगा कि लायर्स पैराडॉक्स होता है. लायर्स पैराडॉक्स ये होता है कि if a compulsive liar goes on to say one day that I am lying, now whether it's a true statement or a false statement, तो आप एक तरीके से देखेंगे तो it will be a true statement, एक दूसरे तरीके से देखेंगे तो it will be a false statement, and it cannot be true and false at the same point of the time. तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है. मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन टू लॉजिक पढ़ाया था तो आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट बार्बर्स पैराडॉक्स. बार्बर्स पैराडॉक्स अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि एक गांव है, उस गांव में एक ही नाई है ना, एक ही बार्बर है, एंड ही शेव्स दोज who do not shave themselves. So this statement is apparently right कि if I am shaving myself then I am not going to the barber to shave or for shaving, and if I am not shaving myself and I want to get shaved, so I will go to the barber. That is the understanding of, क्योंकि एक ही गांव में एक ही barber है तो उसके पास जाते हैं, and this statement is quite true. Now when the question comes like who shaves the barber, then it becomes a very difficult answer, because if he shaves himself then he's not going to shave himself, and if he's not going to shave himself then definitely he has to go and shave himself, and that becomes a problem. तो इस तरीके से जो है पैराडॉक्सेस क्रिएट होते हैं. तो हम आएंगे इनके जिसे कहना चाहिए कि जेनेसिस पे भी आएंगे, और इनके सॉल्यूशंस या एटलीस्ट possible solutions पे भी आएंगे. But right now we need to understand that a statement becomes true and false at the same point of the time, and this is one of the biggest thing or biggest problem which logic or from a logical point of view we can face. तो इस चीज को जो है हम paradox कहते हैं. But anyways, we will go further and try to understand what is a fallacy. Now you must be knowing that fallacy is basically a defect in reasoning. कभी-कभार हम उसको mistake in reasoning भी कहते हैं. Now what is this defect or mistake? ये basically होता है कि हम किसी तरीके की wrong या incorrect reasoning use कर रहे हैं, है ना. कि जो हमारा रीजनिंग का प्रोसेस है, जो भी वेल फाउंडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम हर तरीके की रीजनिंग में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं. जब हमने इंट्रोडक्शन टू लॉजिक पढ़ा था तब भी हमने आपको रूल्स ऑफ इन्फरेंस, रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट, बहुत सारे तरीके की चीजें बताई थी.
तो उन रूल्स को जो है प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर कहीं पे गलती हो रही है या समथिंग लाइक दैट, या फिर किसी तरीके का इनएप्रोप्रिएट आर्गुमेंटेशन है कि ऐसे आप कह तो रहे हो लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, या the idea behind that is not very clear। तो हम कहते हैं कि जब भी कोई डिफेक्ट इन रीजनिंग होती है वो फैलेसी उत्पन्न होती है ना उसको, जैसे कि कभी कभार उसको इंडियन फिलोसफी में हेत्वाभास कहते हैं, यानी कभी कभार जो है हम रीजनिंग तो कर रहे हैं और हमें लग भी रहा है कि सही रीजनिंग कर रहे हैं, एंड इट इज लुकिंग वेरी apparently it is very okay or very nice, but when we come out with the conclusion, that conclusion creates a problem कि यार ये कंक्लूजन कैसे निकल सकता है या ऐसा कैसे हो सकता है, एंड देन यू आल्सो गो ऑन टू सी कि ऐसा हो भी नहीं रहा है लेकिन लॉजिक फॉलो करने पे हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है, और उस गलती को डीबग करना जो है या ट्रबल शूट करना हमारा काम है एज अ लॉजिशियन। बट देन हाउ टू डीबग इट, या हाउ टू जिसे कहना चाहिए कि हमें जो है उसकी गलती ढूंढ के निकालनी है, इज ऑलवेज अ बिग प्रॉब्लम। या देयर आर वेज, मतलब जैसे कि अभी हम देखेंगे कि दिस कोर्स इज मोर टुवर्ड्स द इंडक्टिव अंडरस्टैंडिंग, तो डिडक्टिव अंडरस्टैंडिंग में इजियर होता है, फॉर्मल में इजियर होता है, जब इनफॉर्मल में जाते हैं तो इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम, troubleshooting becomes a big problem and people will come out with lots and lots of ideas, yeah, lots and lots of objections to it, so we also have to observe or understand that। सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट, एंड अलाउ मी टू रिवाइज यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल चुके होंगे आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंटेशन की ही बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेशन में गलतियां ढूंढ रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है सबसे पहले समझ लें। और अगेन दोज हु हैव स्टडीड इंट्रोडक्शन टू लॉजिक दे नो, या जो इस तरीके की चीजों को पढ़ते रहते हैं उनको तो पता है, बाकी लोगों को या जो लोग अभी उतने या तो भूल गए हैं या उन्होंने पढ़ा नहीं है उनके लिए बता दूं कि आर्गुमेंट इज बेसिकली अ सेट ऑफ प्रोपोजिशंस, ठीक है ना, जिसमें कि कुछ लोगों को या कुछ प्रोपोजिशंस को, प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, या मोटे तौर पे अगर कहें तो दे आर स्टेटमेंट्स। तो उनको कैसे डिवाइड किया जाता है, प्रेमाइसेस और कंक्लूजन। प्रेमाइस वो होता है जो कि गिवन होता है, कंक्लूजन वो होता है जो कि हम निकालते हैं, यानी कि जिस चीज को हम निकालने की कोशिश करते हैं वो कंक्लूजन होता है, जो हमें गिवन होता है, दिया हुआ होता है, वो हमारे प्रेमाइसेस होते हैं, और प्रेमाइसेस से कंक्लूजन को निकलना चाहिए, दैट इज द होल आइडिया, है ना। तो एक आर्ग्यूमेंट जो है क्या प्रोवाइड करता है आपको, एक सेट ऑफ प्रोपोजिशंस प्रोवाइड करता है जिसमें कुछ चीजें गिवन होती हैं जिसको हम प्रेमाइसेस कहते हैं, कोई चीज निकालने की कोशिश करते हैं जिसको कंक्लूजन कहते हैं, जिसको निकालने की कोशिश करते हैं वो क्लेम है ना, इट इज क्लेम्ड दैट द कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम द प्रेमाइसेस, यही आइडिया है, तभी हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे। जैसे सेट ऑफ प्रोपोजिशंस है, 4-5 आपने स्टेटमेंट्स बोल दिए, आर्ग्यूमेंट बनेगा क्या, नहीं। 4-5 स्टेटमेंट्स बोले और आपने बोला 4-5 में से ये 4 जो है 5वां निकालता है, तब आप बोलोगे कि हाँ दिस इज एन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि 4 से ये 5वां या 5th जो है निकल रहा है, तब आप बोलोगे कि ओके नाउ दिस इज एन आर्ग्यूमेंट। नाउ देन वी चेक वेदर उन चारों से वो 5वां निकल रहा है क्या, या 2 से तीसरा निकल रहा है क्या, एंड सो ऑन, इस तरीके से बात करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी अ सेट ऑफ प्रोपोजिशंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या फिर स्टेटमेंट्स। तो इस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट को समझते हैं। अब अगर क्लासिफिकेशन देखें, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन देखें ऑफ आर्गुमेंट्स, तो हम बात करते हैं डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक, या फॉर्मल रीजनिंग और इनफॉर्मल रीजनिंग। फॉर्मल रीजनिंग क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज अ स्ट्रक्चर। डिडक्टिव लॉजिक में आपने देखा होगा स्ट्रक्चर्स होंगे, सिंबल्स होगा, उसमें बहुत वेल फाउंडेड रूल्स होते हैं, रूल्स को जैसे ब्रेक करता है तो हमको एरर मिल जाता है, इनको डीबग करना या इनको ट्रबल शूट करना आसान होता है। जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा तो सिंटैक्स एरर आया, तो आपको पता है कि सिंटैक्स में कहीं पे गड़बड़ी हो रही होगी, कहीं पे हमने बैकस्लैश नहीं लगाया, या कहीं पे जो है कोलन्स नहीं लगाए, या कहीं पे जो है हमने इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज किए हैं, या कहीं पे कोई और चीज है ना, कोई चीज जो है क्या बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक होनी चाहिए, हमने सिर्फ अल्फाबेट्स यूज किए हैं या सिर्फ न्यूमेरल्स यूज किए हैं, है ना, या कोई सिर्फ न्यूमेरिक होना चाहिए लेकिन उसमें हमने अल्फाबेट यूज कर दिया है, कोई स्मॉल कैप्स में होना चाहिए हमने बिग कैप्स यूज कर लिए हैं, है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज, सिंटैक्स एरर है, तो सिंटैक्स एरर या कोई भी इस तरीके के फॉर्म्स को जो है पकड़ना आसान होता है, और कभी कभार तो जो कंपाइलर होता है वो आपको बता के भी देता है कि यहाँ पे जो है सिंटैक्स एरर है और ये इसमें शायद ये मिसिंग है, तो वो आपको सजेस्ट भी करता है, तो आपके लिए और आसान हो जाता है एज अ यूजर। जहां तक बात हुई इंडक्टिव या इनफॉर्मल रीजनिंग की, अब इसमें होती है बहुत प्रॉब्लम। इसमें क्यों होती है बहुत प्रॉब्लम, कॉमन रीजनिंग या कॉमन लैंग्वेज की ही ये प्रॉब्लम है कि वो फॉर्मल
नहीं होता। जैसे ऐसा नहीं कह सकते आपकी लैंग्वेज में ग्रामर नहीं होता, बिल्कुल लैंग्वेज है, उसका ग्रामर है, हम ग्रामर यूज करते हैं, है ना। कोई भी जो है एक लैंग्वेज अगर आप देखें तो उसकी ग्रामर होती है, हम उसको फॉलो करते हैं। ग्रामर इज नथिंग बट द सिंटैक्स। बट सिर्फ ग्रामर होने से ही काम नहीं होता, बिकॉज कॉमन लैंग्वेज के अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। कॉमन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मशीन लैंग्वेज या आर्टिफिशियल लैंग्वेज से वो अलग होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें को हम इंक्लूड कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट what happens is that it never stays very formal, it becomes very informal। अच्छा, informal का मतलब ये नहीं है कि हम तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, या informal का मतलब ये नहीं है कि हम ऑफिशियल बात नहीं कर रहे। आप ऑफिशियल बात कीजिए, है ना, या ऑफिशियल बात हो रही है, लेकिन फिर भी it becomes informal precisely because it is not having a very robust structure। यहाँ पे फॉर्म या इनफॉर्म जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गुमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को जो है जब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे तो आप समझ पाओगे कि ऐसा नहीं है कि नेचुरल लैंग्वेज फॉर्मल नहीं होता, बिल्कुल फॉर्मल भी होता है, लेकिन हम उसको इनफॉर्मल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज नॉट हैविंग अ रोबस्ट स्ट्रक्चर। ए मोर और से अ बेटर वर्ड विल बी नॉन स्ट्रक्चरल, है ना। तो ऊपर वाला जो है डिडक्टिव लॉजिक जो है वो स्ट्रक्चरल होगा और इंडक्टिव लॉजिक जो होगा वो नॉन स्ट्रक्चरल होगा, ठीक है ना। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अब ये देखिए, मैंने बताया जैसे आपको कि नेचुरल लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज में, नेचुरल या ह्यूमन लैंग्वेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखिए, एक तो नेचुरल लैंग्वेज और जो नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं या ह्यूमन लैंग्वेज कहते हैं, अगर मैं उसको ह्यूमन लैंग्वेज कहूं तो भी मैं गलत नहीं होऊंगा, इज मोर लाइक ह्यूमरस। रिडिक्यूल्स होते हैं उसमें, ह्यूमर होता है उसमें, है ना। उसमें फन या पन, हम कहते हैं ना कभी कभार कि ऐसा 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 ऐसा, फिर हम बोलते हैं पन इंटेंडेड, है ना, मजाक कर रहा था यार, है ना। या हम कोई ह्यूमर तरीके से किसी चीज को बोलेंगे, बहुत सीरियसली बोलेंगे लेकिन बहुत मजाक वाली बात थी, बहुत मजाक वाली बात थी, या बहुत बहुत ही ज्यादा मजाक वाली बात थी, हमने उसको सीरियसली बोला, बहुत ज्यादा सीरियस बात थी, हमने उसको मजाक में बोल दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें कर लेते हैं हम लोग। इसी तरीके से जो है सार्केज्म या सैटायर भी हो सकता है, नेचुरल लैंग्वेज की खासियत होती है। जैसे आपने कभी सुना नहीं होगा ना कि ऐसे, मुझे पता नहीं, मैं जरा पूछ लूँ आप लोगों से, आप लोग एलेक्सा या सीरी या और भी पता नहीं क्या क्या चीजें यूज करते हैं, हेलो गूगल, हे गूगल, क्या कौन सा है आजकल, कौन सा यूज करते हैं हम लोग जो गूगल में बोल के निकाल लेता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू? व्हाट इज इट? आजकल उसका ऐड भी आता है ना, ओके क्या गूगल है? हाँ, ओके गूगल ओके गूगल, ओके। हाँ, तो ओके गूगल से अगर हम कोई सवाल पूछते हैं तो वो जरूर हमको आंसर देता है या हमको वेबसाइट सजेस्ट करता है। सीरी से भी हम कोई क्वेश्चन पूछते थे तो वो भी बताता है या बताती है, जैसा भी मुझे कहना चाहिए। एलेक्सा भी मेरे ख्याल से इसी तरीके से काम करता है, एंड सो ऑन। अच्छा, अगर हम एलेक्सा को या सीरी को जोक सुनाएंगे तो हंसता भी है क्या, या ओके गूगल हंसता है क्या? पूछ रहा हूँ जस्ट। हाँ, हंसता है? यस सर। क्या हंसता है सचमुच? कोई जोक सुनाओ तो। मैं ये करके देख चुका हूँ, वो उधर से कुछ ऐसा ही रिप्लाई देता है जोक टाइप का। वो थोड़ा सा इस तरीके से रिप्लाई दे रहा होता है। सर आप उससे कन्वर्सेशन भी कर सकते हो, मैं जैसे हाँ? नेचुरली हम करते हैं, कन्वर्सेशन भी कर सकते हो आप उसके साथ, जैसे हम नेचुरली करते हैं। कर सकते हैं, कन्वर्सेशन तो कर सकते हैं, यस पर जोक्स पे हंस सकता है क्या, या सरकाज़म या सटायर पकड़ लेता है क्या? यस सर, ऐसा हाँ 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 करके कुछ आ जाता है सर। अच्छा, ओके। इसका मतलब क्या है कि वो अब नेचुरल लैंग्वेज से ये चीजें भी इंस्पायर हो रही हैं, और आर्टिफिशियल लैंग्वेज में या फिर जैसे मुझे कहना चाहिए कि मशीन लैंग्वेज में ये सारी चीजों को भी इंक्लूड किया जा रहा है। बट स्टिल यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग और यू मस्ट हैव एन आइडिया। ये मुझे कोई कुछ मैसेज लिखने की कोशिश कर रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बोल ही दो, है ना, क्योंकि मैं नहीं सर, वो अगर आप एलेक्सा को विस्पर करके बोलो ना तो वो भी विस्पर करके रिप्लाई करती है, मतलब ऐसे हाँ, लाइक ये चीजें अपना माइक ऑन करके बोल दिया करो, क्योंकि मुझे यहाँ से फिर वापस आना पड़ता है। हाँ, तो एलेक्सा को अगर हम विस्पर करके कुछ बोलते हैं तो वो भी जो है विस्पर करके बोलता है। बहुत अच्छी बात है, तो ये सारी चीजें करता है। अच्छा, एम्बिगुअस लैंग्वेज पकड़ लेता है? नहीं, एम्बिग्विटी पकड़ नहीं पाता है ना, कि अगर सपोज कि मतलब अगेन एम्बिग्विटीज भी बहुत सारी तरीके की होती हैं। अच्छा, अब्यूजिव या स्लैंग अगर हम यूज करते हैं तो किस तरीके का रिप्लाई करता है?
ये पकड़ लेता है सर। सर वो सेटिंग्स में होता है, वो अगर आप ऑन रखते हैं तो वो पकड़ लेता है, नहीं तो वो उसको हाइड कर देता है सर। अच्छा, हाउ अबाउट, लेकिन सर वो ऐसा कोई रिप्लाई नहीं करता है, वो अब्यूज नहीं करता वापस से। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हो। हाउ अबाउट लैंग्वेज जार्गॉन्स, लैंग्वेज के जैसे कुछ जार्गॉन्स होते हैं वो पकड़ लेता है क्या? जैसे कि कोई जार्गॉन होता है ना, हमारे लैंग्वेज के कुछ जार्गॉन्स होते हैं, हर एक लैंग्वेज में कुछ कुछ जार्गॉन्स होते हैं, है ना। जैसे हम लोग फिलोसफी वाले लोग बात बोलेंगे कि दिस वाज वेरी एपिस्टेमोलॉजिकल या मेटाफिजिकल, है ना, तो हम लोग इस तरीके की बातें करते हैं। या फिर कोई लॉजिक वाले बंदे से बोलेंगे तो दिस वाज अ वेरी टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट, है ना, तो वो नहीं पकड़ पाएगा, ये जार्गॉन्स को नहीं पकड़ पाएगा जब तक कि उसको जार्गॉन्स के साथ भी नहीं बताया जाएगा। तो मतलब ले दे के हम नेचुरल आर्टिफिशियल लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट चलो ठीक है, तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज को नेचुरल लैंग्वेज बनाएंगे तो अगेन इट हैज टू फॉलो अ फॉर्म। लेकिन जैसे आपको पता होगा कि दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन है, वो जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं, वो अगर अपनी कोई लैंग्वेज निकालते हैं जिसमें कि वो बहुत सारी चीजों को इस तरीके से यूज करते हैं जो उस तरीके से मतलब नहीं होता है उसका, ठीक है ना, है ना। ये टीन एज में या आप लोग जिस एज में हैं उसमें हम लोग बहुत बार बहुत सारी चीजों को दूसरे वर्ड से बोलते हैं सो दैट वी मेंटेन द सीक्रेसी, और वो सीक्रेसी मेंटेन करने के चक्कर में या मेंटेन जो करते हैं तो दूसरे लोग जो कि आपके ग्रुप के मेंबर नहीं है, आपके दोस्त नहीं है एंड दिस एंड दैट, वो नहीं समझ पाएंगे। या आपके कॉलेज के जो है बहुत सारे लिंगोस होंगे जिनको कि आप समझ सकते हो लेकिन आपके छोड़ के कोई दूसरा पर्सन नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें नेचुरल लैंग्वेज की खासियत होती है। तो नेचुरल लैंग्वेज विल ऑलवेज बी मोर वेरीड, है ना, द रेpertoire या जो उसका होराइजन है वो ज्यादा एक्सटेंडेड होगा या ज्यादा वो होगा। ऐसा होगा ना, जैसे आई एज अ प्रोग्रामर विल फील सर्टेन थिंग्स, तो उससे मेरी मैं जिस तरीके से यूज करता हूँ वो सारी आ जाएंगी, फिर दूसरा कोई यूज करेगा, तीसरा कोई यूज करेगा, बट स्टिल इफ यू सी वेरी नेचुरली कुछ कुछ चीजें रह जाएंगी जो कि नेचुरल लैंग्वेज की होंगी, लेकिन वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज में शायद नहीं इंक्लूड की जा सके या कभी भी इंक्लूड नहीं की जा सके। एंड मोर ओवर द मशीन इज ओनली रिएक्टिंग एज पर द इंस्ट्रक्शंस विच आर प्रीवियसली अवेलेबल। जैसे आपको मैं आज अगर कोई एक नया इंफॉर्मेशन दूं तो यू नो हाउ टू रिएक्ट, और the new reaction will be something very natural, very human, that may not be available with machines। जो भी है, मेरे सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजों के कहने के पीछे अंडरस्टैंडिंग ये है कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो कि मशीन लैंग्वेज या जो डिडक्टिव या फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में आता है उसमें फैलेसीज पकड़ना, या मुझे ऐसा कहना चाहिए डिफेक्ट इन रीजनिंग पकड़ना थोड़ा सा आसान होता है। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल लैंग्वेज में या इनफॉर्मल यूसेजेस में इट इज मोर एंड मोर डिफिकल्ट, है ना। तो और वो डिफिकल्टीज क्यों होती है, कैसे आती हैं, और हमें उसको कैसे समझना है या कैसे उसको डीबग करना है, इस चीज की कोशिश करते हैं हम इस कोर्स में, ठीक है। फैलेसीज इन कॉमन रीजनिंग जो है ये मोर और लेस आपको इंडक्टिव लॉजिक के पेरिफेरल में मिलेगा। आपको फॉर्मल लॉजिक के एक आध छोटे छोटे कुछ एक आध एग्जांपल्स मिल सकते हैं, लेकिन मोर और लेस इट विल बी डीलिंग विद इंडक्टिव अंडरस्टैंडिंग या इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। ये कॉमन लैंग्वेज पार्लांस को पकड़ने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है कि हम कॉमन लैंग्वेज में जैसे मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि अगर किसी ने बोला कि अरे ये पर्सन मद्रासी है, तो हम जानते हैं कि मद्रासी का मतलब सिर्फ मद्रास में रहने वाले लोग नहीं है, मद्रासी का मतलब साउथ इंडियन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। या अगर कोई दुकानदार से कोई लेडी जाके बोलती है कि भाई साहब मुझे 1 किलो सर्फ दे दीजिए, तो उनको पता है कि सिर्फ सर्फ कंपनी का ही जो है वॉशिंग पाउडर नहीं मांग रही है, ये कोई भी कंपनी का वॉशिंग पाउडर मांग रही है बेसिकली, या वहां पे जो चलने वाली वॉशिंग पाउडर है उसका नाम उनको नहीं पता होगा शायद, बिकॉज दैट पर्सन मे नॉट बी सो वेल एजुकेटेड या मे नॉट बी एक्सपोज टू ऑल दोस अंडरस्टैंडिंग। तो बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि सर्फ चाहिए, डालडा चाहिए, है ना, या मद्रासी है, या हम लोग बहुत बार बोलते हैं जेरोक्स कॉपी करके लेकर आना, है ना, या बोलते हैं भैया बैंडेड दे देना, है ना। तो जेरोक्स इज द नेम ऑफ द कंपनी, बैंडेड इज आल्सो द नेम ऑफ द ब्रांड, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम बोलते रहते हैं कि हम इसमें गए, हम उसमें गए, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये खाया, हमने वो खाया, एंड सो ऑन। एग्जैक्टली
वो चीज नहीं होगी। तो कॉमन लैंग्वेज पार्लांस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से कभी कभार स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इनफैक्ट इस पे एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी है जिसको कहते हैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ये बताती है कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में एग्जैक्टली ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। तो जब आप रीजनिंग करते हैं तो उसमें भी अगर एक लैंग्वेज की रीजनिंग का कोई मॉड्यूल है, आप दूसरे लैंग्वेज में हो सकता है कि काफी डिफिकल्ट पाया जाए। और एक लैंग्वेज और दूसरे लैंग्वेज में बहुत सारी डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे आप जानते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में एक बेसिक डिफरेंस आप देख ही सकते हो कि उसमें आप तुम तू नहीं होता है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में एवरीथिंग इज यू, हम हिंदी में आप तुम त्यू कहते हैं। इसी तरीके से बंगाली लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है मेल और फीमेल का डिस्टिंक्शन नहीं होता। तो उसमें कोई जाता है और जाति ही नहीं होता है, सब कुछ ही जाती है ना, या जाता है वो, क्योंकि वो डिफरेंस नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो स्पेसिफिक लैंग्वेज की भी कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसके कारण से कभी कभार फैलेसीज क्रिएट हो जाती है, या रीजनिंग में जो है ट्रबल होता है, प्रॉब्लम आता है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से कल्चर, कहीं का कल्चर है कोई चीज कहना। जैसे मैं आपको भोपाली लैंग्वेज में, मतलब क्योंकि सिंस आई बिलोंग टू भोपाल, तो भोपाल में जो है पीपल टॉक इन सम वेज विच यू विल हैव नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट, है ना। और मैं अभी आपको इतना जैसे मुझे कहना चाहिए कि स्कैंडलस नहीं करना चाहता, बट देयर आर सम स्कैंडलस यूसेज इन भोपाल। उसकी लैंग्वेज अगर मैं आपको कभी एग्जाम्पल में बाद में बताऊंगा तो लैंग्वेज सुनेंगे तो आप घबरा जाएंगे, जबकि इट मीन्स वेरी डिफरेंट देन व्हाट इट इज थॉट अबाउट, and a person in Bhopal will understand it, but may not be easily understood by rest of the people, and in fact it is misunderstood। और कभी कभार झगड़े भी हो जाते हैं, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, but actually वो वैसे नहीं कहा गया है। तो ऐसे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कल्चर बेस्ड भी होता है। कभी कभार कहीं पे कल्चर के कारण से किसी वर्ड का यूसेज, आपके वर्ड या आपके कल्चर में उसका यूसेज एकदम कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूँ बाई का, कि बाई वर्ड जो है ये नॉर्मली काम वाली बाई के लिए यूज किया जाता है, हम लोग जैसे जानते हैं। और बहुत जगहों पे जो है महाराष्ट्र साइड में बाई मतलब आई, मतलब कि माता जी के लिए भी वर्ड यूज किया जाता है, और कहीं कहीं पे उसका यूसेज प्रोस्टिट्यूट भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस और एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं जिसके कारण से जो है कभी कभार आपने किसी को एक तरीके से कहा लेकिन उसकी मीनिंग जो है दूसरे तरीके से निकल गई, एंड सो ऑन। तो इस तरीके के भी कंफ्यूजन्स हो जाते हैं। या कभी कभार आप जो है एक सर्टेन लैंग्वेज या उसका डायलेक्ट यूज करते हैं, तो उसके कारण से दूसरे डायलेक्ट वाले लोग उसको कुछ दूसरे तरीके से समझते हैं, उसी कारण से भी जो है फैलेसी क्रिएट हो सकती है। तो आज तक या अभी तक हम लोग क्या क्या जानते हैं, ये जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन टू लॉजिक पढ़ा है उन्होंने ये, मैं इस वीडियो के साथ, इस वीडियो को जब मैं अपलोड कर रहा हूँ तो इस वीडियो के साथ इन तीनों मतलब ऐसे टोटल 4 टाइप ऑफ फैलेसीज है जो कि हमने कोर्स में डिस्कस की थी, मैं इसका लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, इन द डिस्क्रिप्शन विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड लास्ट सेमेस्टर। हमने 4 टाइप के फैलेसीज पढ़े थे इनिशियली जब हमने इंट्रोडक्शन टू लॉजिक पढ़ा था। The first one was called fallacies of relevance, second was defective induction, third one was presumption, and fourth one was ambiguity। तो इसमें कुछ कुछ फैलेसीज पढ़ी थी हमने। अगर आपको याद हो, जो फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस थे वो बेसिकली इररेलेवेंट कंक्लूजन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो अपील टू इमोशन या पिटी, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं। इस तरीके से रेड हेरिंग या स्ट्रॉमैन की फैलेसीज के बारे में बताया था, अपील टू फोर्स जिसको बैकुलम कहते हैं इसके बारे में बताया था, अगेंस्ट द पर्सन, है ना, एड होमिनम वाली फैलेसीज होती है, या इग्नोरेशियो एलेंची होता है, तो उसके बारे में बताया था। इसी तरीके से जो फैलेसीज ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शंस थे, जैसे एड इग्नोरेशियम था, इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी था, फॉल्स कॉज था, या हिस्ट्री जनरलाइजेशन था, ये सारी चीजें भी मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेक कर लेना, है ना। जस्ट टू रिवाइज यू कि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी, इनसे रिलेटेड चीजें भी पढ़ेंगे, बट अभी I cannot take my time out over here because I will like to discuss a few more things। ऐसे फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन, ये तीनों चीजें, है ना। ये फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट जो है ये क्या है, कन्वर्स ऑफ फैलेसी ऑफ हिस्ट्री जनरलाइजेशन, और फैलेसी ऑफ हिस्ट्री जनरलाइजेशन क्या है, कन्वर्स ऑफ फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट।
तो एक फैलेसी दूसरे फैलेसी के साथ कभी कभार रिलेटेड भी होती है, ये सारी चीजें बताई थी। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको याद होगा, कभी कभार ये कोर्ट रूम आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। बेगिंग द क्वेश्चन भी होता है, जिसमें कि आप वही चीज को फिर से बोलते हैं दूसरी भाषा में या दूसरे तरीके से, तो आपको लगता है कि यार इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड सो ऑन, है ना। तो इस तरीके की हमने फैलेसीज के बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट वाली फैलेसीज जो हमने डिवाइड या डिवीजन पढ़ा था, इनफैक्ट कॉपी का जो डिस्टिंक्शन है फैलेसीज का, उसको वन ऑफ द स्टैंडर्ड्स माना जाता है ना। और हम लोग जब इंट्रोडक्शन टू लॉजिक पढ़ते हैं तो उसमें कॉपी पढ़ते हैं, तो कॉपी का जो फैलेसीज का डिवीजन है उसको एक तो स्टैंडर्ड माना जाता है, एंड इट गिव्स यू अ वेरी गुड ओवरव्यू of the types of fallacies which are available, and having you get a very good understanding about the fallacies. तो उसमें इक्विवोकेशन के बारे में बताता है, जैसे वर्ड्स या फ्रेजेस या एम्फीबॉली सेंटेंसेस का थोड़ा सा मिस्टेकन यूज, या थोड़ा जो है जैसे मुझे कहना चाहिए कि लाइट यूसेज के कारण जो है चेंजेस हो जाते हैं, एक्सेंट हो जाता है ना। मैंने जैसे बताया भी था कि एक्सेंट की फैलेसी पकड़ना बहुत मुश्किल है जब तक कोई आपको बताए नहीं। तो आप अगर सुन पा रहे हो सपोज, तो अभी तो ऑडियो विजुअल है, हमारे सारे वीडियोस हैं और अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हैं, तो आपको हम एक एक्सेंट की फैलेसी सुना भी सकते हैं, सुनाएंगे आगे चल के, तो उसमें आप समझ पाओगे। लेकिन एज सच पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लिखाई में या पढ़ाई में नहीं दिखेगा वो चीज, है ना। इस तरीके से कॉम्पोजिशन की फैलेसीज होती हैं कि पार्ट से होल में चले जाते हैं या होल से पार्ट में आ जाते हैं, डिवीजन की फैलेसी होती है ना। तो इस तरीके की रीजनिंग्स और इस तरीके की चीजें जो हैं होती हैं कॉमन लैंग्वेज में, हम लोग इस तरीके की गलतियां करते हैं और हम धीरे धीरे जो है समझ भी पाते हैं। बट लेट अस गो अ लिटिल बिट फर्दर इसलिए क्योंकि हमारा काम जितना हमने बैकड्रॉप में करके रखा हुआ है वो सारी चीजों को तो एक बार हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक से, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्या और कैसे ये फैलेसीज होती हैं, ये थोड़ा समझना जरूरी है मेरे लिए या जरूरी है हम सबके लिए। एंड इसलिए हम इस पे ज्यादा डिबेट्स करेंगे, इसमें हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। पहली चीज, फैलेसी कमिट कैसे होती है। सबसे पहला अगर मैं आपको रीजन बताऊं, इट इज इंटेंशनल। मोस्ट ऑफ द पीपल हु कमिट फैलेसीज आल्सो नो दैट दे आर कमिटिंग अ फैलेसी, या दे नो दैट दे आर ट्राइंग टू फूल यू। वो कोशिश, वो जानबूझ के करते हैं ऐसा, है ना, सो दैट कि आपको वो दिग्भ्रमित कर सके, है ना। दे कैन टेक यू आउट ऑफ द वे और दे कैन मैनिपुलेट सर्टेन थिंग्स। तो ये पहली चीज है जिसके कारण से फैलेसीज कमिट होती है। दूसरा, अननोइंगली, ये भी है। ऐसा नहीं कि हर एक पर्सन जो है आपको इंटेंशनली बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है या आपको जो है गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। कभी कभार अननोइंगली भी होती है, क्योंकि जानते ही नहीं, इतना एक्सपोजर नहीं, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो उसके कारण से होता है। या कभी कभार इग्नोरेंस के कारण होता है, ना तो सामने वाले का इंटेंशन था, ना मैं बेवकूफ बनना चाह रहा था या समथिंग लाइक दैट, बट क्योंकि हम लोग बहुत इग्नोरेंट हैं, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो क्योंकि ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो कभी कभार इसके कारण से भी फैलेसीज कमिट होती है, या केयरलेसनेस भी आप कह सकते हो उसको, कि उसके कारण से भी होता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट, और ये जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा हमारे कोर्स में। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा कोर्स का सेकंड यूनिट है, यू विल सी दैट इन द होल ऑफ द सेकंड यूनिट वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट बायस्डनेस कल्चर। देखिए, वी आर बायस्ड इंडिविजुअल्स, हम ह्यूमन बींग्स तो हैं और हम एक कल्चर को बिलोंग करते हैं। हमारे कुछ जो है अंडरस्टैंडिंग होती है कुछ चीजों को लेके, हम किसी चीज को अच्छा, किसी चीज को बुरा मानते हैं, किसी चीज को ठीक, किसी चीज को गलत मानते हैं, तो किसी चीज को कुछ, किसी चीज को कुछ मानते हैं। इसी कारण से वी डेवलप्ड एज बायस्ड इंडिविजुअल्स। अनबायस्ड होना बहुत मुश्किल होता है ना। वी आर ऑलवेज फेवरिंग समथिंग, है ना, एंड वी विल बी अनफेवरेबल या डिसफेवरिंग या व्हाटएवर वर्ड यू विल लाइक टू यूज, वो तरीके से जो है हम रहते हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण से फैलेसीज होते हैं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है, हम मानते ही नहीं है कि वी कैन बी हैविंग अ थर्ड पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, और वी कैन हैव एन अनएम्बिगुअस unbiased point of view. We will always be biased towards, जैसे men will be biased towards men ना, वो females को थोड़ा सा कैसे कैसे बोलेंगे। females जो कि suppose feminist हैं, they will have an ideology, इस तरीके से रहता है। अगर हायर कास्ट पीपल हैं तो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, लोअर कास्ट पीपल है उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, ब्लैक्स हैं वो एक तरीके से बात करते हैं, व्हाइट्स हैं सुप्रीमेसी से अपनी तरीके से बात कर रहे हैं, कोई एक कंट्री का है उसकी कोई दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई है तो वो एक तरीके से जो है उनके बारे में सोचता है, तो कोई कुछ है कोई कुछ है, इस तरीके से बायसनेस बहुत होती है। जब बायसनेस होती है तो किसी की बात आपको ठीक या किसी की बात आपको ठीक नहीं लगती
है ना। तो ये भी एक रीजन है, और फिर उसके बाद उसका आर्गुमेंटेशन होता है। आप जजमेंट्स देखना, मैं कोई जुडिशरी या कोर्ट्स के जजमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी देखिएगा, आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड इन फेवर ऑफ समथिंग एज वेल एज अगेंस्ट समथिंग। आप ये चीजें अगेन जुडिशरी में देख सकते हो कि डिसीजंस रिवर्ट होते हैं। आप जुडिशरी में ये भी देख सकते हैं कि एक तरीके का स्टैंड पॉइंट चेंज हुआ है। आप ये चीज ह्यूमन बीइंग में भी देख सकते हैं। एक पर्सन एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता था, 5 साल के बाद वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने गया। पहले एक पर्सन को सपोर्ट करता था, अब वो दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। पहले वो एक चीज को सही मानता था, फिर उसको दूसरी चीज को मानने लग गया। somebody turns from vegetarian to non-vegetarian, somebody turns from vegetarian to non-vegetarian, है ना। वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन होते रहते हैं लोग, हुए हैं, ठीक है। ऐसे ना जाने कितनी सारी चीजें, कोई वीगन बन गया, कोई पहले वीगन था एकदम नॉन वेजिटेरियन बन गया, कोई विंडोज यूज करता था उसके बाद उबंटू पे शिफ्ट हो गया, कोई उबंटू वाला था या ओपन सोर्स वाला था वो धीरे धीरे जो है विंडोज पे या दूसरे इस तरीके के सॉफ्टवेयर से शिफ्ट हो गया। कोई पहले सी यूज करता था उसका जावा यूज करने लगे, बोलते सी बेकार है। कोई जी जावा वाला था वो सी यूज करने। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और फिर वो बायसनेस भी डेवलप होती है। तो पीपल गो ऑन टू चेंज, ये चीज भी जो है समझिएगा। अच्छा, इससे भी इंपॉर्टेंट कल्चर। देखिए कल्चर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपके कल्चर में आपको ये सही बताया गया है, आप उस कल्चर में ढलते हुए आप उसको सही मानने लग जाते हैं। उसके बाद आपको दूसरे कल्चर में अगर उसके विपरीत कोई चीज मिलती है तो आपको उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको मतलब हमको, है ना, ऑल ह्यूमन बींग्स, जो भी ह्यूमन बींग्स एक कल्चर को बिलोंग करेंगे वो दूसरे कल्चर जो कि उनके अगेंस्ट में या उनके जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होगा, उनको ठीक नहीं लगेगा, है ना। चाहे वो कितनी भी अच्छी बात हो, from one point of view it will not be a very good thing from another point of view। अच्छा, कभी कभार ड्राइंग दी लाइन में भी दिक्कत होती है ना। जैसे कि क्या ऐसा है कि 17 साल 364 दिन में आदमी मेच्योर नहीं है और 17 साल 365 दिन में यानी कि 18 साल में उसको मेच्योर की तरह डील किया जाता है ना। मतलब कि एडोलेसेंट या जो भी है, आप देख सकते हो कि 18 के बाद एक सर्टेन टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीजें अलाउ की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग अलाउ कर दी गई तो आप बहुत खुश हो गए, आप जुवेनाइल भी नहीं बचे। 18 के बाद जो है आपने कोई क्राइम कमिट किया, अगर वही 2 दिन पहले कमिट करते तो आप जुवेनाइल के थ्रू बच जाते। लेकिन अगर 18 के बाद आपने किया है, 1 दिन के बाद भी किया है, तो भी आप जो है फंस जाओगे। तो ऐसा क्या है वो ड्राइंग द लाइन में। सो देयर आर डिफिकल्टीज ड्राइंग द लाइन एज वेल, है ना। और वो ड्राइंग द लाइन में भी कभी कभार जो है बहुत सारी फैलेसीज होती है, बहुत सारा आर्गुमेंटेशन होता है कि नहीं इसके लिए ये होना चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए। इस तरीके से टाइम प्लेस डिपेंडेंसी भी होती है। जैसे कि आपने बोला कि ये चीज जो है सही है, जैसे इफ आई से दैट दिस इज फ्रेश, समथिंग इज फ्रेश, इट्स फाइन, बट व्हेन इट वाज टॉक्ड से 2 days बैक, हमने उसके बारे में बात करी तो इट्स नो मोर फ्रेश, in fact it is going to be very very fatal if you consume, है ना। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। या कभी कभार सेम स्टैंडर्ड सेट करना जो है ये भी प्रॉब्लम होता है। देखिए टाइम और प्लेस के कारण से जो है ट्रुथ अनट्रुथ और अनट्रुथ ट्रुथ में बदल सकता है, ठीक है। और उसके कारण से आपके इनिशियल प्रेमाइसेस और आर्गुमेंटेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्रेमाइसेस पे आधारित है ना कंक्लूजन। तो प्रेमाइस चेंज हो गया, प्रेमाइस की ट्रूथ या फॉल्सिटी चेंज हो गई, तो कंक्लूजन जो निकाल रहे थे उसकी भी ट्रूथ या फॉल्सिटी चेंज हो जाएगी। तो टाइम प्लेस डिपेंडेंसी भी बहुत बार होती है। तो टाइम या प्लेस के कारण, जैसे एक टाइम पे आपने एक कार्य किया वो बिल्कुल गलत था, दूसरे टाइम पे आपने वही काम किया बहुत सही था, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, है ना। तो आपने देखा होगा कि कल्चरल प्रेजुडिसेस के कारण से भी जो है somebody becoming क्या कहना चाहिए मुझे, somebody becoming a mother without marriage is still a taboo, है ना। लेकिन आफ्टर मैरिज इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड थिंग, है ना। या बहुत इज्जत मिलती है आपकी सोसाइटी में। अगर आप इनफैक्ट नहीं बन रहे हैं माँ तो वो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। ऐसे टाइम प्लेस के कारण से जो है बहुत सारी ट्रूथ्स और फॉल्सिटीज में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। उसके कारण से हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज बदल जाते हैं और उसके कारण से जजमेंट्स बदल जाते हैं। और वो जजमेंट किस चीज पे आधारित होते हैं, अगेन लॉजिक पे होता है, एक रीजनिंग पे होता है, और वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये भी चीजें इस तरीके से कभी कभार वी डू नॉट क्वेश्चन द प्रेमाइसेस, हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, और या ये चीज जो है बिल्कुल सही है। तो अगर ये चीज बिल्कुल सही है तो फिर इस पे हमें कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। एंड सिंस वी डू नॉट हैव टू क्वेश्चन दोस प्रेमाइसेस, तो कंक्लूजन सीम्स टू बी राइट एज वेल, व्हिच इज नॉट द केस।
क्योंकि अगर आपने प्रेमाइसिस को थोड़ा सा क्वेश्चन किया होता, प्रेमाइसिस को थोड़ा सा स्टडी किया होता, तो आप देखते कि द ट्रुथ ऑफ द प्रेमाइसिस व्हिच यू थिंक इज द ट्रुथ इज नॉट एक्चुअली द ट्रुथ। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस तरीके से कभी कभार क्या होता है कि एक आर्गुमेंट और दूसरा आर्गुमेंट एकदम स्ट्राइकिंगली सिमिलर दिखता है ना, आर्टिफिशियली दे लुक एग्जैक्टली द सेम। तो आपको लगता है कि अगर ये वाला आर्गुमेंट ट्रू है या वैलिड है तो ये वाला भी वैलिड होगा, अगर ये वाला साउंड है तो ये वाला भी साउंड होगा, ये वाला स्ट्रांग है तो ये वाला भी साउंड होगा या स्ट्रांग होगा। बट देन इवन इफ दे लुक स्ट्राइकिंगली सिमिलर, दे आर ओनली सिमिलर, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, है ना। हम सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ते हैं ना, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सब चीजें सेम होंगी, सिमिलर में क्या होगा, रेशो बदल सकता है, तो रेशो के कारण से स्ट्रेंथ और वीकनेस भी बदल जाती है, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस बदल गई तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। तो why I'm saying or why I'm giving you these ideas, because you have to keep those things in your mind when you are tackling a fallacy, है ना। क्योंकि क्यों कमिट हो रहा है, कैसे कमिट हो रहा है, इस चीज को जब तक नहीं समझ पाओगे आप डीबग नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि why there was problem with the reasoning. This understanding has to be very clear that why there is problem with the reasoning, है ना। तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो वॉल्टन ने जो है 1995 में एक बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छा डेफिनेशन दिया। अगर मैं बोलूं कि दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन, आप मत सोचने लेना ये बेस्ट डेफिनेशन है, मैं मान रहा हूं ये बेस्ट डेफिनेशन है। मैं आपको जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। इफ आई एम सेइंग दैट वॉल्टन हैज कम आउट विद द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फैलेसी इन द 1995, उसका मैंने लिंक भी दिया हुआ है। तो यू थिंक दैट सर ने बोला था मतलब ये बेस्ट डेफिनेशन नहीं, मेरे हिसाब से बेस्ट है। किसी और को बोलेंगे वो बोलेगा वॉल्टन के डेफिनेशन में क्या, इससे अच्छा डेफिनेशन तो एक्स ने दिया है, वाई ने दिया है, जेड ने दिया है, इस तरीके से बातें करते हैं ना। तो अगेन इट्स अ प्रेजुडिस, अगेन इट्स अ वैल्यू जजमेंट। तो दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड कीप इन माइंड। बट एनीवेज लेट अस डिस्कस कि उन्होंने क्या क्या चीजें कही। वॉल्टन ने कहा एन आर्ग्यूमेंट और एटलीस्ट समथिंग दैट, एक फैलेसी होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले एन आर्ग्यूमेंट और एटलीस्ट समथिंग दैट परपोर्ट्स टू बी एन आर्ग्यूमेंट, मतलब या तो आर्ग्यूमेंट चाहिए या फिर ऐसा दिखना चाहिए कि ये एक आर्ग्यूमेंट है, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट, है ना। ये लोगों को लगना चाहिए कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंटेशन हुआ है। तो ये पहली चीज, मतलब कि एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए, एक बेसिक आर्ग्यूमेंट चाहिए, पहली चीज। देन दैट फॉल शॉर्ट ऑफ सम स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस, कोई एक स्टैंडर्ड है करेक्टनेस का, उससे वो कम है, ये एक रीजन है। दूसरा इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डायलॉग। ये अगर सपोज मैं आपके साथ आर्ग्यू ही नहीं कर रहा हूं, अगर मैं डायलॉग ही नहीं कर रहा हूं, तो देन एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ आई एम डायलॉग, इफ आई एम इन्वॉल्वड इन अ डायलॉग, इफ आई एम इन्वॉल्वड इन अ डिस्कशन, तो वो क्या रहा है कि आई एम प्रोवाइडिंग यू एन आर्ग्यूमेंट फॉर समथिंग, है ना। मैं कोई चीज सोचता हूं, मैंने उसको कहीं पे लिख के रख दिया है, आई एम नॉट आर्ग्यूड इट विद समबडी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन इफ आई एम आर्ग्यूइंग इट विद समबडी, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, है ना। क्यों? हैज अ सेम्बलेंस ऑफ करेक्टनेस अबाउट इट। देखिए ये वही वाली बात है कि स्ट्राइकिंगली सिमिलर, इसकी कोई सेम्बलेंस है, कोई रिजेम्बलेंस है किसी चीज के साथ, तभी हम बोल रहे हैं कि ये किसी न किसी चीज के साथ जो है काफी हद तक सिमिलर होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, poses a serious problem to the realization of the goal of the dialogue। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसा कंक्लूजन क्रिएट कर रहा है या ऐसा स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा है जो कि इधर पैराडॉक्सिकल हो जाएगा या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा या वी विल हैव अ प्रॉब्लम। तो आइडिया क्या है इन सब चीजों के पीछे? आइडिया ये है या समझने की बात ये है कि एक आर्गुमेंटेशन है जो कि किसी स्टैंडर्ड से थोड़ा सा लेस होगा, उसको किसी के साथ डिस्कशन किया जा रहा होगा, वो कहीं ना कहीं से करेक्ट दिख रहा होगा, लेकिन उसका कंक्लूजन जो है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा, देन इट्स अ फैलेसी, देन अ फैलेसी अकर्स, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पे दिखना चाहिए हमको कि क्या क्या चीजों इनके बारे में बात की हमने, जो पीछे फैक्टर्स देखे ना कि हाउ अ मिस्टेक कम्स इन रीजनिंग, वही चीज को अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो वो यही चीजें हैं, ठीक है ना। कि इट देयर इज एन आर्गुमेंट, इट इज अ लिटिल बिट लेस, इज हैविंग करेक्टनेस, बट इट इज इन्वॉल्व्ड इन एन आर्गुमेंटेशन, it is having some correctness as well, yeah, looks to be apparently correct hai, and have a serious threat to the argumentation। तो इन चीजों के जैसे मुझे कहना चाहिए मिक्सचर के द्वारा या एमैल्गमेशन के द्वारा जो है फैलेसी आ जाती है। तो मेरे लिए या ये सारा डिस्कशन जो हमने किया, ये जो सारी चीजें समझाने की कोशिश करी, इससे मेरे लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट?
व्हाट कॉजेज अ मिस्टेक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमेशा समझना। एंड व्हाट इज द मिस्टेक, क्यों हो रहा है और क्या है वो, ये दोनों चीजें जो है हमें जाननी है इन दिस कोर्स, है ना। फैलेसीज इन कॉमन रीजनिंग विल ट्राई टू एड्रेस कॉजेज ऑफ मिस्टेक एंड द मिस्टेक, कि कॉज क्या है और मिस्टेक एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि ये अगर समझ पाएंगे तो वी विल बी बेटर रीजनर्स, बेटर रेशियोसिनेटर्स, या बेटर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। जैसे कुछ दिनों मेरे ख्याल से पिछली क्लास में, जो कि डे बिफोर यस्टरडे था, मेरे ख्याल से वैभवी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये राइट अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करने की कोशिश करेगा। यस, क्यों? क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग में ये सारे फैक्टर्स हैं। जब आप प्रॉपरली रीजन करते हो, है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। क्योंकि आप जब तक प्रॉपरली रीजन नहीं करोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बायस्ड होगी। तो आपको बायस्ड अंडरस्टैंडिंग से या किसी कल्चर से ओतप्रोत, या किसी सुप्रीमेसी या इंफीरियोरिटी से ओतप्रोत, या किसी भी भाषा या कोई भी इस तरीके के फैक्टर्स से ओतप्रोत से ऊपर उठना है। यू नीड टू कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना, तब जाके आप प्योर एंड डिस्टिंग्विश्ड रीजनिंग कर पाएंगे। एंड प्योर एंड डिस्टिंग्विश्ड रीजनिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर टुडेज लाइफ, क्योंकि अब हम कॉस्मोपॉलिटन हो चुके हैं, अब हम बायसेस के थ्रू नहीं चल सकते, है ना। हमें बहुत ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा इवन इन आवर कॉमन लैंग्वेज। जैसे मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग एलेक्सा या रिलेटेड टू सीरी या ओके गूगल, वो यही था कि आप देखिए कितनी सारी चीजें मशीन लैंग्वेज इनकॉर्पोरेट कर रहा है सो दैट इट कैन डिसाइफर कॉमन लैंग्वेजेस, है ना, या कॉमन लैंग्वेजेस में जो चीजें होती हैं। तो हम आर्टिफिशियल लैंग्वेज को हम लिखते भी है ना कि थ्रू एआई ये करेगा, ये वो करेगा। तो ये क्यों कर रहा है? आज हम मेल लिखते हैं तो उसमें भी सजेशंस देता है ना, चाहे ग्रामर के हो, चाहे प्रीवियस हमने जो चीजें लिखी हुई हैं, ये इसीलिए कर रहा है सो दैट कि हमारी या ये जो है कॉमन रीजनिंग को जो है या कॉमन लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज के साथ मिलाते जाने की एक कोशिश है। तो हमें भी जो है अपनी रीजनिंग में या अपनी भाषा में, अपने बोलचाल की भाषा में जो गलतियां हो रही हैं उसको कम करने की जरूरत है। या मजाक मस्ती के लिए ठीक है, लेकिन समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कह सकते एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम कि मुझे समझ में नहीं आया था, आई कुड नॉट गेट इट, है ना। तो वी हैव टू मेक एन एफर्ट। ऐसा नहीं है कि ये कोर्स करके जो है, जैसे ये जो है पैराडॉक्स है। द पैराडॉक्स इज दैट द मोर वी आर ट्रेन्ड टू डिटेक्ट अ मिस्टेक इन रीजनिंग, द मोर वी आर एडमेंट टू कमिट इट एंड डिसीव, है ना। जैसे मैंने पूछा था ना कि, या बताया था ना कि मिस्टेक्स क्यों होती हैं या गलतियां क्यों होती हैं, तो कुछ जो है नोइंगली होती है ना। वी कॉन्स्टेंटली मेक एन एफर्ट, तो ये काम नहीं करना है। और दूसरा, सामने वाला क्या बोलने की कोशिश कर रहा है उसको समझना है, रादर देन उसकी एम्बिग्विटी के चलते आप उसको गलत समझ के या तो खुद अपना नुकसान कर लेते हैं या सामने वाले का नुकसान कर देते हैं। पीपल इवन sue people in the court of law because you said this, how can you say this, जबकि उसका इंटेंशन नहीं था ये कहने का, but we intentionally pick up what can be the worst meaning of that and then we go on to sue that person in the court of law. Yeah, we have a very abusive discourse with the person, है ना। तो हम इस तरीके की चीजें भी करते हैं, ये नहीं करना है, और चीजों को और बेटर तरीके से सोचना एंड समझना है। एनीवेज, this is all for the day today, and I invite your questions and queries.